Good evening, everyone. So, in today's lecture, we are going to see introduction to the design subject. That is what DDRCS. In Mumbai University, degree subjects we have in these subjects in 8 semester. DDRCS stands for Design and Drawing of Reinforced Concrete Structure. If you want to see the syllabus marks distribution of this subject, we will see the syllabus copy. So this is what the syllabus copy given by the Mumbai University. Subjects belongs to 8 semester. Subject code is what CE Civil Engineering C801 Design and Drawing of Reinforced Concrete Structure. As compared to the other subjects, this subject we will have for the 5 credits points, and the scheme of this subjects technical scheme exactly we will have in this subject. So we will have the theory for 4 points, where total grade की बात करें हम लोग. First of all is what the contact hours, and second is what the credit assigned. The theory paper, we will have the for 4 points. That is what the hours in week in your quiz timetable. So you will have theory of 4 lectures, and secondly we'll have the practical for the 2 lectures that we will be in the form of tutorial. It assign the out of 5 credits. They will assign the 4 credit points for the theory and one for the practical. In practical, you people will have what you can say the mini project design part. Obviously, that will be based on the LSM and WSM. Second, the mark distribution for this subject. Again, we will have this total subject for the 80 marks, and how exactly this 150 marks. How exactly subject will distribute this 80 marks here. We'll see. So, internal assessment, that means we will have the test number 1, test number 2. So each will be of the 20 marks, and average of that 20 marks will be considered for the final assessment. End semester exam will be of the 80 marks, and main thing is what, as like that of our DDSS subject, 6 semester subject, duration of end semester exam will be the 4 marks. Next, term work for this subject is over 25 marks. That will include the assignments, and practical will not be there. And we will have the oral based on this practical part. What exactly that practical part will include? That will include the design of a whole, we can say the G+3, G+4 building that depend upon your college and faculty. So what exactly we will get to know when we will see we will study this subject. So simple, they have given some points here. Reinforced concrete structure are widely used for the residential, commercial, and industrial structure. SI unit has specified the use of limit state method design philosophy for design of structure. Pre-stressed concrete structure are another class of structure used for the bridges, bridge girders, long span, slabs, etc. Civil engineers must have knowledge of designing and detailing of SCC and pre-stressed concrete structure to make the structure safe and serviceable during its lifespan. Also the acknowledge about the response of structures during an earthquake is prerequisite of the design engineers. During previous semester, students have studied detailed basic elements of the LSM. This course covers a complete design of G+3 structures in addition to the advanced topic of what are the things that these points are important here. Advanced topic, you can see here. Advanced topic of design of water tank is very important point. Retaining wall. Okay. We'll see the syllabus in detail. The course also contains PSC beams, pre-stressed concrete beams, very important point. Beam topics, and introduces earthquake resistance design.
this design is based on this design. Just a minute. This design is based on IS code known as IS 13920. It's very important again. IS code very important as per the earthquake design consideration. This IS code is what important, and by using this IS code, we will design our structure, earthquake resistant design structure, drawing and detailing of structure. So on this IS code, now previously that IS code was released. You can say we having the copy of IS code is what 1993 revision we can say, and now this IS code is revised in 2016. So important thing is what this IS code is what very important in what under the you can say the under the circumstances of earthquake design structures. And obviously because nowadays in market the designers are not considered this IS code at, and also because all the designers are designing structures by using the softwares like we know the StatPro is there, and ETAB is there, then we having Primavera is there. Too much you can say the so many softwares are there that are so many softwares are there are using for the designs. So what we are going to do, so using introduction of this IS 13920 is important here. The important thing is what this IS code is what used for various purposes. And IS 13920, we will have the introduction of this IS 13920. Objective, why exactly we are going to see this subject is important here. And elemental study we have already seen in our previous semester. So we'll see what are the objective of this DDRCS subject. Explain LSM design procedure of G+3 structure by application of, to explain. It's very important. G+3 obviously by after studying the DDRCS subject, मतलब DDRCS खत्म होने के बाद we can go for this design G+3 structure. That means ground floor, first floor, second floor, third floor structure RCC design. By the proper application of IS codes, including loading calculation, analysis, and design of individual elements. So IS code that we are going to include in this design is what IS 456 1000. We are aware about this. After that, we are going to see IS 875. From this, we will see part 1, 2, 3, and 4. That includes the loading part. And one more IS code we are going to see, that is what abhi hum log ne dekha previously, IS 13920. This is what the seismic design IS code, and the revision we are going to consider is of 2016. Okay, so this is what the first objective of objective of studying the DDRCS subject, analysis and design of individual element. So this is load calculation points, we can say analysis, design, and individual elements of the structures. Second point that we are going to see in this DDRCS subject is what to the concept in the design of staircase is very important part, because RCC अगर हमें डिजाइन करना है G+3, उसमें staircase वाला पार्ट तो होना ही है. उसके अलावा हम लोग क्या नहीं करते, बिल्डिंग बना ही नहीं सकते. Staircase, water tank is there, and second is what retaining wall. So why I am highlighting here water tank? This water tank we बाकी सब जो structures है that we are going to design according to by using our LSM method. एंड ये जो वाटर टैंक है हम लोग डिजाइन करने वाले हैं, दिस ये वाटर टैंक वी विल डिजाइन बाय यूजिंग WSM मेथड. इन माइंड only this part is there, only this topic is there, water tank, that we are going to design using WSM method. Obviously the IS code is what IS 456. Method we are going to use what working stress method is very important. Why? Because that structure is what heavy structure,
and the structure by design of the water tank by using WSN, what we can say that it's easy, or we can call that as an मतलब fail नहीं होता है उसके लिए. तो water tank अभी heavy structures है, even we can say the dams are also designed with the WSN. जो heavy structures है उसमें volume का काम है, वहाँ पे हम लोग WSN method use करते हैं. Next point is what is our next point? Next point is what to explain the concept of stress concrete. तो एक्चुअली ये DDRCS जो ओल्ड सिलेबस में था, तो उसमें ये सीज्मिक डिजाइन एंड प्रीस्ट्रेस वाला पार्ट था नहीं, बट ये नए सिलेबस में उन्होंने इंक्लूड किया. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीस्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर, ये प्रीस्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर ये मेनली यूज किया जाता है ब्रिजेस के लिए, या फिर यू कैन से द फॉर लॉन्ग स्पैन स्ट्रक्चर्स के लिए. ये लॉन्ग स्पैन स्ट्रक्चर के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट यूज किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट द इंट्रोडक्शन टू द क्विक रेजिस्टेंस डिजाइन मेथड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अभी अभी जो डिजाइन में काम करते हैं, जो इंजीनियर्स, डिजाइन इंजीनियर्स हैं, उनके लिए ये IS कोड, मतलब ये डिजाइन एंड इसका करस्पॉन्डिंग IS कोड जो मैंने यहाँ पे लिखा है IS 13920 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सप्लेन ड्राइंग एंड डिटेलिंग ऑफ स्ट्रक्चर. ऑब्वियसली IS कोड में ही आता है एक्सप्लेन ड्राइंग एंड डिटेलिंग ऑफ स्ट्रक्चर. डिटेलिंग मतलब होता क्या है कि हम लोग कोई भी डायग्राम अगर बनाने जा रहे हैं, डायग्राम में जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं, लाइक समझ लो कि हम लोग कोई बीम का डायग्राम बना रहे हैं. बीम के डायग्राम में उसका बीम का डायग्राम, तो बीम का मिनिमम डायमेंशन कितना होगा, उसमें रेनफोर्समेंट अगर देना है तो रेनफोर्समेंट किस तरह से दे सकते हैं, टेंशन रेनफोर्समेंट कहाँ पे होगा, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट कहाँ पे होगा, इंक्लाइन अगर बार मुझे वहां पे प्रोवाइड करने हैं, इंक्लाइन बेंटअप बार प्रोवाइड करने हैं, तो बेंटअप का सपोर्ट से डिस्टेंस कितना होगा, सपोर्ट वहां पे अगर मैं दे रहा हूँ तो किस टाइप का सपोर्ट. दिस आर द ड्राइंग एंड डिटेलिंग. मतलब डिजाइन होने के बाद जो हम लोग उसका प्रिंट निकालते हैं, उसका डायग्राम बनाते हैं, जो हम लोग साइट पे देने वाले हैं, तो साइट वाला जो इंजीनियर है, वो इंजीनियर का ये ड्राइंग देख के, डिटेलिंग देख के अपना उसका स्ट्रक्चर बनाने उसको आना चाहिए. इस तरह से हमें क्या करना होता है, ड्राइंग एंड डिटेलिंग करना होता है. विल सी दैट इन बाय यूजिंग IS 13920. एंड लास्ट पॉइंट इज टू डेवलप द कंसेप्ट द डिजाइन यूजिंग रेडी चार्ट एंड द कर्व्स different elements of the structure. Yes, this part is especially for the columns and the beams. We'll see how exactly we are going to see. So जो रेडी चार्ट है उसका यूज करके हमें क्या करना है, रेडी चार्ट एंड कर्व्स, उसमें एक इटरेशन कर्व करके आता है for the different elements of the structure. So these are what the objects that for that we are going to study this DDSS subject. And next part, what we will see, we'll see our subject syllabus in detail. Please write down your syllabus. Please have a heading syllabus. We'll see syllabus in detail. It's very very important. Wait, am I audible? Yes, sir. Okay. There are other people's. बाकी लोग कहाँ पे हैं? तो पता नहीं, मुझे आप और मैं ही दिख रहे हो. ओके, चलेगा चलेगा. मैसेज तो किया था ग्रुप में. ठीक है, आप सिलेबस लिखो. विल स्टार्ट. जब ज्वाइन होंगे तब होंगे, देख लेंगे बाद में. Okay, first is what the comprehensive design of building. Comprehensive design of building, right on syllabus. Complete design of residential, commercial, industrial G+3 structures. Load transfer mechanism, arrangement of the beam, slab, columns, design of footing, beam, column, staircase, lintel and छज्जा. वेरी इंपॉर्टेंट. एक्चुअली अगर ये देखा हम लोगों ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके पहले वाला जो ओल्ड सिलेबस था इसमें ये चीज नहीं दी थी उन्होंने. करना क्या है यहाँ पे, हाईलाइट जो मुझे करना है, सो ये वाले पार्ट, अरेंजमेंट ऑफ द बीम, दैट मींस वी नीड टू डिजाइन बीम. आफ्टर दैट वी हैविंग द स्लैब. उसके बाद हमें कॉलम डिजाइन करना है, डिजाइन ऑफ फुटिंग, बीम, कॉलम्स. उन्होंने आगे सेपरेटली भी दिया. ये अरेंजमेंट ऊपर का हो गया. उसके बाद उन्होंने बोला है कि बीम, कॉलम, स्टेयरकेस, लिंटेल एंड छज्जा, इन सब का डिजाइन करना है मुझे. इन शॉर्ट अगर हम लोग इसका थोड़ा अरेंजमेंट कर ले, तो कैन आई से हियर कि हमें इसमें 3 चैप्टर बनते हैं अपने. इट इज व्हाट डिजाइन ऑफ, फर्स्ट इज व्हाट फुटिंग, ना.
व्हाट यू डू रोहित, ये पूरा लिखो जो उन्होंने दिया है, उसके बाद नंबर 1 डालना नीचे, तो डिजाइन ऑफ फुटिंग करना है। फुटिंग से अच्छा है कि व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर staircase. Number second, write down flow system. And flow system, this will include slab, design of slab, plus design of beams. Okay. And number 3, lintel. सर ये कंप्रेसिव डिजाइन ऑफ बिल्डिंग के अंदर लिखूं ना? ऑब्वियसली फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं, ये पूरा लिखा आपने, कंप्रेसिव डिजाइन ऑफ बिल्डिंग। हाँ, उसके वो लिखा, अभी उसके नीचे ये लिख रहा हूँ, वही उसके पूछ रहा नीचे था। नंबर 1 डाल दो। staircase, that is what design of staircase. Second is what the flow system. उसके आगे लिखो slab plus beam. इसमें हम लोग स्लैब एंड बीम डिजाइन करेंगे। ये स्प्लिट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक साथ हम लोग इतना सब करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये चैप्टर्स बनाएंगे हम लोग इसके आगे जाके। एक बार हम लोग सिंपल स्टेयरकेस देखेंगे, उसके बाद फ्लो सिस्टम, एंड एक लास्ट में जब अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा तो G+3 बिल्डिंग देख लेंगे कि किस तरह से हम लोग वहां पे डिजाइन कर सकते हैं। ओके, एंड थर्ड पार्ट, राइट ऑन डिजाइन ऑफ फुटिंग। ओके, तो फुटिंग में कॉलम भी आ जाएगा। एंड लिंटेल एंड छज्जा आर द पार्ट ऑफ द बीम्स, दैट ये एक्चुअल डिजाइन करेंगे तो हम देख लेंगे। ओके, हो गया लिख के? हाँ सर, ये हुआ। ओके, नंबर 2 डाल दो। और स्टेयर के सामने ऊपर भी लिखा है, यहाँ पे भी सेपरेट चैप्टर भी दिया है, राइट ऑन दैट। नंबर 2, डिजाइन ऑफ स्टेयरकेस। उसमें 2 टाइप पढ़ने हैं हमें, वन इज व्हाट डॉगलेग एंड सेकंड इज व्हाट ओपन वेल स्टेयरकेस। नंबर 3 इज व्हाट डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल। उसमें भी 2 है, कैंटिलीवर एंड काउंटर। सर डिजाइन ऑफ स्टेयरकेस में क्या थे? यहाँ पे नीचे दिखा है, देखो, नंबर 1 डाल दो, डिजाइन ऑफ डॉगलेग। दिख रहा है ना स्क्रीन पे? नहीं दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है ना। तो लिखो लिखा नंबर लिखा। 1, डिजाइन ऑफ डॉगलेग स्टेयरकेस। तो डिजाइन ऑफ डॉगलेग एंड ओपन वेल स्टेयरकेस लिखा है ना यहाँ पे, तो नंबर 1 डाल दो डॉगलेग एंड सेकंड नंबर डाल दो ओपन वेल स्टेयरकेस। Number 3, design of retaining walls. उसके अंदर भी लिखो नंबर 1, डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर। कैंटिलीवर, retaining wall, and number 2, counterfort. It's very important part. Okay. नंबर 3 हो गया। नंबर 3 हो गया रोहित? सर हाँ सर, ये दोनों हो गया। ओके, नंबर 4, डिजाइन ऑफ वाटर टैंक। डिजाइन ऑफ वाटर टैंक।
उसके अंदर नंबर 1 लिख लेना, AS कोएफिशिएंट मेथड, and second number 2 approximate method. डिजाइन ऑफ वाटर टैंक के आगे ब्रैकेट में लिख लेना सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर वाटर टैंक। मतलब पूरे डिजाइन ऑफ वाटर टैंक में हमें 2 सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर वाटर टैंक देखने हैं। वो दोनों वाटर टैंक हमें डिजाइन करने हैं आईएस कोड कोएफिशिएंट मेथड एंड अप्रोक्सीमेट मेथड। मतलब अगर देखा जाए तो सर्कुलर वाटर टैंक का हम लोग को 2 तरीके से डिजाइन करना है, एक कोएफिशिएंट मेथड से एंड हाँ मतलब टोटल 4 टाइप्स हो गए ना सर? एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेट मेथड से भी हमें क्या करना है, डिजाइन करना है। सर बट सुनो ना, हम लोग का जो ये पहला था उसमें इतने सारे टाइप थे, उसमें आपने 3 ही लिखा है, तो क्या वो उनके अंदर ही डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या? आवाज नहीं आया आपका, क्या बोल रहे ये हैं? कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइन ऑफ बिल्डिंग, हाँ नहीं वो तो एक पहला उसमें चैप्टर था, पहला चैप्टर है वो। हाँ हाँ नहीं, बट उसमें 3 ही टाइप करा है आपने, उसमें इतने सारे सब टाइप्स थे ना, वो पूछ रहा। उसमें कौन से सारे उसमें टाइप इतना थे? कुछ था ना, ये स्लैब वाले था, में बीम था, कॉलम था, जस्ट अ छज्जा। मिनट। हाँ इसके ऊपर वाले, वो फर्स्ट हाँ वाले में, हाँ। लिया है, तो इसमें से कंप्लीट आपने डिजाइन सिर्फ ऑफ 3 ही निकाले रेसिडेंशियल क्या? कमर्शियल इंडस्ट्रियल D+3 स्ट्रक्चर। मतलब ये बिल्डिंग के हम लोग डिजाइन करने वाले हैं, बराबर। तुम्हें सिलेबस में है हाँ लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म, अरेंजमेंट ऑफ द बीम, स्लैब्स, कॉलम्स। ये मतलब ये समझ लो हम लोग G+3 बिल्डिंग डिजाइन करने जा रहे हैं। ये 3 टाइप के बिल्डिंग्स होंगे, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल। उसके बाद ये अपने सिलेबस में है, समझ लो। उसके बाद उसने क्या बोला है कि लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म, इन तीनों में इस तरह से लोड ट्रांसफर होगा। पहले तो हम लोग डेड लोड, लाइव लोड, इनका हम लोग IS 875 से 875 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4 के हिसाब से हम लोग वो लोडिंग देख लेंगे। क्या बोला उन्होंने, लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म। ये एक मैकेनिज्म लोड ट्रांसफर कहाँ पे होगा, इसके ऊपर लोड ट्रांसफर होगा। पहले स्लैब के ऊपर लाइव लोड एक्ट हो जाएगा, स्लैब के थ्रू बीम के ऊपर लोड ट्रांसफर होगा, बीम के थ्रू कॉलम पे जाएगा, कॉलम के थ्रू फाउंडेशन पे जाएगा, मैकेनिज्म। उसके बाद अगर ये लोड ट्रांसफर मुझे करना है तो अरेंजमेंट वहां पे होना चाहिए। उसके आगे उसके लिए उसने क्या बोला, अरेंजमेंट ऑफ बीम्स, स्लैब्स एंड कॉलम। अब ये अरेंजमेंट होता किस तरह से है, अपने रूम्स के हिसाब से अरेंजमेंट होता है कि रूम का डायमेंशन किस तरह से होगा। तो रूम का डायमेंशन समझ लो मेरा 3/2 है, 3/2 मेरा समझ लो बाथरूम है, फिर किचन का साइज होता है 3/2 मीटर है। तो उसमें स्लैब किस तरह से बिठाऊंगा मैं, तो स्लैब का टाइप क्या आएगा, स्लैब के टाइप के हिसाब से लोड किस तरह से ट्रांसफर होगा। अगर लोड ट्रांसफर होगा, पूरा प्लान मेरा कितना है, अगर समझ लो एक फ्लोर की बात करो तो फ्लोर एक समझ लो मेरा एक 20 मीटर बाय 30 मीटर का है। तो इसमें किस तरह से मैं बीम को किस तरह से मैं एडजस्ट करूँ, प्राइमरी बीम्स आएंगे, उसमें सेकेंडरी बीम्स आएंगे, एंड बीम आने के बाद फिर कॉलम किस तरह से दूं, ये सब का अरेंजमेंट मुझे देखना है वहां पे जाके। ये सब पार्ट कवर हो जाएगा, मतलब ये रिलेटेड है, मुझे बताना ये है। तो ये अरेंजमेंट होने के बाद इसमें डिजाइन वाला पार्ट क्या है, तो आगे जाके देख लो। डिजाइन ऑफ फुटिंग, यहाँ पे देखो, डिजाइन ऑफ फुटिंग। ठीक है, डिजाइन ऑफ फुटिंग डायरेक्ट तो नहीं जा सकता मैं, तो उसके लिए पहले क्या आना चाहिए, कॉलम आना चाहिए, बराबर। पहले कॉलम आना चाहिए ना डिजाइन होके, कॉलम का लोड ही तो अपने फुटिंग के ऊपर ट्रांसफर होगा। कॉलम डिजाइन करने के पहले मुझे बीम डिजाइन करना नहीं आना चाहिए, मतलब बीम का ही लोड कॉलम पे ट्रांसफर होगा ना। और कॉलम बीम डिजाइन करने के पहले मुझे स्लैब के लिए जाना होगा। मतलब ये सब रिलेटेड है, तो हमें इसको क्या करेंगे, हम लोग पहले अपने सिलेबस जब पढ़ेंगे इनको अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्टली G+3 डिजाइन करने के लिए नहीं बोलेंगे वो, क्या बोलेंगे, एलिमेंटरी स्टडी बोलेंगे। अगर G+3 की बात कर रहे हो यहाँ पे, तो G+3 के लिए हमें क्या क्या किया जाएगा, QACV की तरह एक प्लान दिया जाएगा। उसका तुम लोग को वो बोलेंगे, नाम दिया जाएगा, S1 S2 स्लैब डिजाइन करो, ABC बीम डिजाइन करो, ABCD बीम डिजाइन करो, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए मैंने बोला कि हम लोग इसको पढ़ने के लिए जो एक साथ में किस तरह से आता है ये तुम लोग को बता दूंगा मैं। और उसके बाद एलिमेंटल स्टडी करेंगे, मतलब पहले क्या करूंगा मैं, एक प्लान लेके उसमें स्लैब एंड बीम एट ए टाइम डिजाइन करेंगे। उसके बाद फुटिंग के लिए जाएंगे, उसके बाद स्टेयर केस के लिए जाएंगे। समझ में आ रहा है? इनका लोड ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा अलग अलग तरीके का है, मतलब समझो रिलेटेड क्या है, स्लैब का लोड मुझे बीम पे ट्रांसफर करना है, बीम का कॉलम का मेरा फुटिंग पे जाएगा। स्टेयर केस का तो खुद का अपना ही लोड कैलकुलेशन होता है, वो उसके हिसाब से लोड जो कॉलम पे जाएगा वो कॉलम के लिए डिजाइन करेंगे हम लोग बाद में। समझ में आ रहा है? आपको क्या डाउट था हाँ सर। इसमें?
इतने सब है लिखे हैं वहां पे नंबर, इसका मतलब एक साथ डिजाइन नहीं करने, वो सेपरेट सेपरेट डिजाइन करके फिर एट द एंड G+3 का हम लोग एक साथ करेंगे। समझा सर। ओके, कहाँ पे थे हम लोग? फोर्थ वाले पे सर, वाटर वो टैंक हो हो गया गया। था। लास्ट में लिखो नेक्स्ट, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, नंबर 5। ये दो चैप्टर्स पहले DDRCS में नहीं थे, अभी ये नई सिलेबस तुम लोग के सिलेबस में इंक्लूड किया, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर्स एंड प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट। Okay, number 5, earthquake resistance, design of structures. उसका क्या सर, अर्थक्वेक का सब उसके टाइप? अंदर लिखो, हम लोग इसमें देखने वाले हैं डिजाइन फोर्स कैलकुलेशन। नंबर 1, डिजाइन फोर्स कैलकुलेशन, तो इसमें कोएफिशिएंट मेथड है, उससे हम लोग करने वाले हो। एंड सेकंड पॉइंट लिखो, वो यहाँ पे आके दिए हैं, डिजाइन एंड डिटेलिंग एज पर IS 13920। हो गया। Okay, so these are the 2 points that are in chapter number 5. Chapter number 6, pre-stress concrete, very important. Pre-stress concrete. ओके, इसमें तो हम लोग बेसिक पार्ट ही देखने वाले हैं, देखो उसे नीचे रीड कर सकते हो। प्रीस्ट्रेस कंक्रीट, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रीस्ट्रेस कंक्रीट, मटेरियल यूज्ड, system of the pre-stressing, that is what tensioning, post-tensioning, losses in the pre-stress, analysis of beam section, ट्रांसफर एंड सर्विस। वेरी मतलब समझ लो प्रीस्ट्रेस का बुक है कृष्णा राजू का, उसके 2-3 चैप्टर है पहले के, उसमें छोटा छोटा पार्ट लेके उन्होंने डिजाइन किया, ये मतलब ये टॉपिक बनाया है। प्रीस्ट्रेस एंड राइट डाउन, उसके आगे बेसिक लिखा तो भी चलेगा, या फिर ये पूरा लिखना है तो एक एक लाइन में लिख सकते हो। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रीस्ट्रेस कंक्रीट, नेक्स्ट लाइन पे मटेरियल यूज, नेक्स्ट लाइन पे सिस्टम ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग, नेक्स्ट लाइन पे लॉसेस इन प्रीस्ट्रेस, एनालिसिस ऑफ बीम, ट्रांसफर एंड वो न्यूमेरिकल है खाली, मतलब लॉसेस एंड एनालिसिस ऑफ बीम ये दोनों पे ही न्यूमेरिकल्स आएंगे। कौन से पे न्यूमेरिकल आएंगे सर, क्या बोला आपने अभी? यहाँ पे ये दो टॉपिक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, दैट इज व्हाट लॉसेस इन प्रीस्ट्रेस एंड नेक्स्ट इज व्हाट एनालिसिस ऑफ बीम सेक्शंस, दोनों के। बाकी तो थेरोटिकल पार्ट है, मटेरियल यूज्ड, सिस्टम ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग, इनके दो टाइप के न्यूमेरिकल है, दोनों में से एक कोई तो फाइनल एग्जाम में आएगा। कितने मार्क्स का रहेगा वो? ये न्यूमेरिकल आएगा अराउंड 10 to 12 मार्क्स के लिए। इसे हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अपने नेक्स्ट पेज पे जाके लिखूंगा मैं, डोंट वरी। हाँ सर, ये हो गया, ये अपना सिलेबस एक ब्रीफ हो में गया। था, as per our मतलब यूनिवर्सिटी का जो PDF दिया है उसके हिसाब से। आगे क्या है, कंट्रीब्यूशन द आउटकम्स ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, द स्टूडेंट शैल बी एबल टू व्हाट, मतलब DDRCS होने के बाद तुम्हें क्या क्या आना चाहिए। सो दीज आर द की पॉइंट्स on which we need to focus while studying the DDRCS. Number 1 is what, design independently RCC structure by applying IS code provisions. Obviously आ ही जाएगा, क्योंकि हम लोग हर एक एलिमेंट बीम का, बिल्डिंग का डिजाइन करेंगे तो ऑब्वियसली डिजाइन करने आएगा। डिजाइन स्टेयरकेस, वाटर टैंक एंड रिटेनिंग वॉल, दीज आर द स्टेयरकेस तो ऑब्वियसली बिल्डिंग में आता है, वाटर टैंक एंड रिटेनिंग वॉल आर द टॉपिक्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द, मतलब बिल्डिंग के अंदर नहीं है, ये बाहर के टॉपिक है, तो वो भी ऑब्वियसली डिजाइन करने हैं। दो न्यूमेरिकल अगर मतलब एक भी न्यूमेरिकल हम लोग अच्छे से पढ़ लिए, आराम से तुम लोग को डिजाइन कर पाओगे। नेक्स्ट इज व्हाट, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ PSC। PSC का मतलब क्या होता है, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट, एंड द कैलकुलेट द लॉसेस। ऑब्वियसली ये ऊपर हम लोगों ने पॉइंट्स देख ही लिए, तो ऑब्वियसली प्रीस्ट्रेस का प्रिंसिपल क्या है, इस तरह से प्रीस्ट्रेसिंग मटेरियल होता है, उसके मेथड्स क्या है, प्री टेंशनिंग है, पोस्ट टेंशनिंग है,
उसके बाद हम लोग उसके अंदर लॉसेस किस तरह से आते हैं, प्री टेंशनिंग है तो किस टाइप के लॉसेस आएंगे, पोस्ट टेंशनिंग है तो उसमें किस टाइप के लॉसेस आएंगे, तो लॉसेस कैलकुलेट भी करने आएंगे। उनके मतलब अलग अलग फॉर्मूलेज है, 6-7 लॉसेस आते हैं, उनके हर एक करस्पॉन्डिंग फॉर्मूलेज है। उनको अगर हम लोग देख लेंगे, फॉर्मूलेज को हम लोग कैलकुलेट मतलब फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने लॉसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 4 क्या है, ड्रॉ एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल डिटेलिंग, दैट इज व्हाट द सिस्मिक IS 13920 के हिसाब से जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तुम्हें, जस्ट अ मिनट। ये जो स्ट्रक्चरल डिटेलिंग है, स्ट्रक्चरल डिटेलिंग, दिस पार्ट इज इंक्लूडेड इन IS 13920 और ये पूरा अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर के लिए है। हम लोगों ने यहाँ पे अपने 5th चैप्टर में देखा अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर के लिए। लास्ट पॉइंट क्या है, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक एंड कैलकुलेट डिजाइन फोर्सेस। तो इसलिए मतलब समझ लीजिए चैप्टर नंबर 5 की बात करें, ये चैप्टर नंबर 6 की बात करें, दोनों मिला के नंबर 1 to 4। सो आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं। जब तुम लोग स्ट्रक्चर्स पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे तो आराम से तुम लोग के ये पार्ट तुम लोग कर दोगे, कोई इशू नहीं है। सर इसके लिए कोई नया IS बुक लगेगा? नहीं, IS कोड का PDF होता है, ये यहाँ पे भी तुम लोग को जब पढ़ेंगे हम लोग तब दिखाऊंगा मैं, इशू नहीं वैसे। और तुम लोग डाउनलोड भी कर सकते हो। IS 456 है, ये तो कंपलसरी लगेगा। और उसके बाद IS 13920 भी 2016 का PDF है, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, सो वी कैन सी दैट। ओके, तो हाउ एग्जैक्टली अपना एग्जाम जो फाइनल पेपर रहेगा किस तरह से होने वाला है। क्वेश्चन पेपर विल बी comprised of 5 questions. First questions will be carry 32 marks. That is what the important. हम लोग DDSS में भी किया था, देखो कि पहला क्वेश्चन अपना 32 मार्क्स का था एंड रिमेनिंग क्वेश्चन ईच विल बी 16 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कंपल्सरी एंड रिमेनिंग 4 में से कोई भी 3 क्वेश्चन तुम लोग को अटेंड करने हैं। ओके, पर सर अभी लॉकडाउन के बाद क्या चेंज हो सकता है क्या? पैटर्न की सेम ही अगर रहेगा? ऑफलाइन एग्जाम होगा तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे उसमें, सेम ऐसे ही पैटर्न रहेगा। ओके, सो एक शॉर्ट में देख लेना, हम लोग अपने हिसाब से मतलब एक ब्लैंक पेज पे दिखा तो तुम्हें कि मतलब लिख के देखते हैं किस तरह से पैटर्न होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द डिजाइन प्रोजेक्ट्स गिवन ऑफ द फॉलोइंग, डिजाइन ऑफ स्लैब एंड कंटिन्यूअस बीम और डिजाइन ऑफ कॉलम फ्रॉम द टेरेस टू फुटिंग। ठीक है, डिजाइन ऑफ काउंटर फुट रिटेनिंग वॉल, ये हम लोग जब पढ़ेंगे तब दिखाता हूँ मैं। डिजाइन ऑफ ओवरहेड वाटर टैंक इंक्लूडिंग डिजाइन ऑफ स्टेजिंग। ओके, and next 4 questions will be based on the remaining models of syllabus। फिर उसमें स्टेयरकेस आएगा, उसके बाद रिटेनिंग वॉल आएगा, उसके बाद सिस्मिक डिजाइन आएगा, प्रिस्टेस का न्यूमेरिकल आ सकता है। ऑल रिलेवेंट IS कोड्स विल बी अलाउड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो IS कोड अलाउड है, मतलब कौन सा IS 456 IS 13920 में अलाउड है। ओरल किस तरह से होने वाला है, ओरल एग्जामिनेशंस accompanied by the teaching will be based on the entire syllabus and then the term work and the site visit report। तो डिपेंड है कॉलेज के ऊपर, अगर साइट विजिट होता है तो तुम्हें उसका रिपोर्ट लिखना होगा, या फिर तुम लोग जो डिजाइन करोगे उसका स्केचिंग बनाने के लिए बोलेंगे कि स्केचिंग मतलब वो डिटेलिंग। अगर मैं बीम डिजाइन कर रहा हूँ तो बीम में किस तरह से रेनफोर्समेंट होगा, उसको हम लोग कवर ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद बेंडिंग आते हैं, उसके फॉर्मूलेस क्या है, उसके बाद कपलिंग आता है तो कपलिंग किस तरह से करते हैं। तो इन शॉर्ट स्केचिंग जो करने के लिए बोलेंगे ओरल के पहले, उसके ऊपर तुम लोग का ओरल होगा। टर्म वर्क में क्या क्या इंक्लूड है अभी ये बताने की जरूरत नहीं है। टर्म वर्क शैल कंसिस्ट ऑफ नीटली रिटन design report including detailed drawing on the following points topics: the design report of G+3 building using relevant IS code, design report of counter fort report in the sense what you can say we need to मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि असाइनमेंट की बात कर रहे हैं। डिजाइन रिपोर्ट ऑफ काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल और ओवरहेड वाटर टैंक एंड स्टेजिंग, ये हम लोग जब पढ़ेंगे चैप्टर उसमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली स्टेजिंग होता क्या है। रिपोर्ट ऑफ वन साइट विजिट टू अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, RCC बिल्डिंग हो सकता है, PSC प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट बिल्डिंग भी हो सकता है। एंड असाइनमेंट कंसिस्टिंग ऑफ मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस ईच ऑफ मॉड्यूल 3 to 6। तो ये हर एक चैप्टर के हिसाब से असाइनमेंट आएगा। ओके, सो ये कुछ इस तरह से अपना सिलेबस है DDRCS का। और अभी तुम्हें बोलोगे सर कि बुक वगैरह रेफर करना है क्या, कर सकते हो, जिसको डिजाइन में इंटरेस्ट है वो बुक मैं तो बोलूँगा कैरी करे ही। जैसे भी क्लास अगर अपना नोट्स है तो ऐसे बुक की ज़रूरत नहीं है,
तो यहाँ पे मैं तुम लोग को बोलूँगा कि इसके साथ जा सकते हो, शाह कर्वे। उसके बाद एक है एच जे शाह, भी बुक अच्छा है। और उसके बाद यहाँ पे अर्थक्वेक के लिए अगर हम लोग बोले तो जो हमें चाहिए वो एस के दुग्गल है। प्रीस्ट्रेस कॉन्क्रीट की अगर बात कर रहा हूँ हमने तो कृष्णा राजू है। तो इनका नोट्स तुम लोग को दे दूंगा पीडीएफ के फॉर्मेट में। मतलब ये स्ट्रेस कॉन्क्रीट, क्योंकि इसके दो चैप्टर अपने हमें लगने वाले हैं। अर्थक्वेक के लिए भी 2 चैप्टर लगेंगे, इसमें पूरा बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। ओके, बट ये आरसीसी के लिए जब अगर तुम लोग ने पहले टीआरसीएस के लिए लिया है तो ठीक है, नहीं लिया तो फिर इनके भी पीडीएफ अवेलेबल है एच जे शाह करवे के, तो वो पीडीएफ के साथ भी तुम लोग काम कर चला सकते हो, खरीदना ऐसी जरूरत नहीं है। ओके, तो क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट इन सिलेबस? सर ये शाइन कर्वे का रीइंफोर्स कंक्रीट का है ना, एलएसएम का। हाँ, और जे 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 ये जे शाह का अपना तो किसका है, नाम उसके दिया वो है, कुछ आगे दिया दिया है, है। रेनफोर्स कंक्रीट, ये नाम ही है उनका सब्जेक्ट का, रेनफोर्स कंक्रीट करके बुक का नाम है। तो एच जे शाह के लिए सिलेबस देख के लिख सकते हो, मतलब याद रखना है खाली हमें एलएसएम के लिए लेना है। वहाँ पे मेथड डब्ल्यूएसएम की भी हाँ, बुक तो अवेलेबल कौन सा इन है। दोनों में से अच्छा है? एच जे शाह सही रहेगा। एच जे शाह में कैसे कि थेरोटिकल पार्ट बहुत अच्छे से दिया है। शाह करवे भी सही है, बट कैसे है कि उसने थोड़े न्यूमेरिकल कम दिए, बट एच जे शाह में न्यूमेरिकल ज्यादा है, उसके हिसाब से जा सकते हो। ओके, हाँ सर। एनी डाउट टिल हियर? नहीं सर। Okay, so this is what the all introduction of your subject. So what we will do, we'll see how exactly mark distribution will be. So now write down how exactly sequence will be there. जब हम लोग पढ़ेंगे तो अब sequence क्या होगा chapters का. Number 1, we are going to see design of retaining walls. उसके अंदर कौन सा retaining wall आने वाला है? Cantilever and counterfort. तो ये लगभग हमें पूछा जाएगा फाइनल एग्जाम में, तो 16 to 20 मार्क्स के लिए। ये ओल्ड सिलेबस में 16-20 मार्क्स के लिए पूछा जाता था, बट अभी ये नए सिलेबस में उन्होंने क्या किया है, कम किया है इसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मार्क्स कम किए हैं। चलेगा, कोई इशू नहीं, बट एटलीस्ट 16 मार्क्स के लिए तो पूछा जाएगा। नेक्स्ट नंबर 2 हम लोग देखेंगे डिजाइन ऑफ स्टेयरकेस। इसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम 60 टू, तुम लोगों ने आपने पहले लिखा है ना, उसमें जाके खाली मार्क्स ऐड कर देना। इसमें हम लोग देखेंगे डॉगलेग, नंबर 2 हम लोग देखेंगे ओपन वेल। इसका भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सेम जो लिखा अभी हम लोग ने। नंबर 3 हम लोग जाएंगे क्लोज सिस्टम के लिए। डिजाइन ऑफ फ्लो सिस्टम that includes residential and industrial building. इसका वेटेज न्यूमेरिकल अगर पूछा जाएगा तो ये न्यूमेरिकल अराउंड मतलब सिंपल है, पहले तो 40 मार्क्स के लिए पूछा जाता था, तो इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा 25 to
30 मार्क्स के लिए। Number 4, we'll see design of foundations. इसमें अभी तक हम लोग डिजाइन ऑफ फाउंडेशन बहुत सारे देखे हैं, बचा खाली है राफ, तो ये हम लोग मैट बोलते हैं, फुटिंग। इसका वेटेज भी अराउंड 16 to 20 मार्क्स। Number 5, डिजाइन ऑफ वाटर टैंक। ये भी अगर रेक्टेंगुलर आया तो बड़ा आएगा, छोटा मतलब समझ लो ये वेरी होता है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इसको, ये 16 to 32 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चंस इसका 10 मार्क्स का भी आता है कभी कभी, और ये 32 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। समझ में आ रहा है, मतलब ये वेरी होता है। 10 मार्क्स का आया तो ये सर्कुलर वाटर टैंक रहेगा, और 32 का आया तो रेक्टेंगुलर वाटर टैंक रहेगा। नंबर, ये तो अपना ओल्ड सिलेबस था, अभी नए कंटेंट ऐड किए हैं, दैट इज व्हाट चैप्टर नंबर 6 इज व्हाट। सर फ्लोर सिस्टम या ये डिजाइन ऑफ वाटर टैंक में से 30 मार्क्स वाला आएगा ना? फ्लोर सिस्टम अलग है एंड वाटर टैंक का डिजाइन अलग है। फ्लोर सिस्टम में हम लोग को प्लान दिया जाएगा, उसका स्लैब डिजाइन करना है, बीम डिजाइन करना है, मतलब उसमें आएगा 2 स्लैब 1 बीम, या फिर 1 स्लैब 2 बीम, ऐसे डिजाइन करना है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मतलब 32 मार्क्स वाला ये दोनों में से आएगा, बाकी में से हमारे जो नॉर्मल 10 फ्लोर सिस्टम या अर्थक्वेक में से दोनों में से एक आएगा, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे वहां पे, दोनों में से एक करना होता है। ओके, समझ में आ रहा है, क्या आएगा 10 हाँ to सर। 16 मार्क्स के लिए। एंड चैप्टर नंबर 7 इज व्हाट डिस्ट्रेस्ड स्ट्रक्चर। इसका भी थ्योरी एक क्वेश्चन आता है, मतलब 10 to 16 मार्क्स से पकड़। दिस इज व्हाट योर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बुक की अगर बात करो, पहले बोल ही दिया है, तो शाह करवे सही रहेगा। इस कोड जो हमें चाहिए IS 456 2000, IS 13920 2016, इनके PDFs हैं। एंड थ्योरी नोट्स तो तुम्हें मिल ही जाएगा। Hello everyone, here is something about our batches that are starting from today's onwards. So some advertise, you can say, batches and schedule for the batches we are commencing from today onwards. For first semester, we having engineering mechanics subject that will start from 9th February. Third semester, strength of material, that is for DAC, direct second year engineering students that have taken admission in December and January. They are now having the third semester. For the fourth semester, we having SA1 subject, that is what structural analysis subject will start from the 8th semester. Similarly, sixth semester, we having subject that is what DDSS, and that will start from the 10th February, and DDRCS for the 8th semester, Mumbai University. We have started today. That is what DDRCS, design and drawing of reinforced concrete structure. Fee structure is what is like shown in here. Some key points are there, some notes are there that we need to study, that you people need to note. 100% syllabus with fixed timetable. Offline discussion will be there, doubt clearing sections will be there. Online lectures will be on online platform like Zoom or Microsoft Team and Google Meet. Some softwares are there.
We having proper notes. You will get the recorded lectures of every lecture. Offline lectures will start after completion of lockdown. That depend, and some key features are there for of our coaching. And again, one more thing I need to announce here is what we are announcing integrated batch for the competitive exams of civil engineering engineers starting from 20th February. That will include we having the batches for we having various exam for the civil engineering. That is what we can say the MPSC, PWD, WRD, BMC, and Mahatransco also is there. So this is what we review our batches. Note these points and convey your forward to your classmates, your friends that are eager to know about the lectures and the batches.